اور کوشش کروں گا کہ جو جس طرح میرے زندگی گزری جماعت احمدیہ کے اندر، وہ میں حد الوسع اپنی پوری یادداشت اور دیانتداری کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح طور پر بیان کر سکوں۔ آپ میں سے بعض میری کسی بات پہ معترض بھی ہو سکتے ہیں، آپ میری کسی بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کا حق ہے، لیکن میری کوشش کہ میں حقائق کو اسی طرح سامنے رکھوں جس طرح میرے پیش آئے یا میری یادداشت میں ہے یا جس طرح وقوع پذیر۔ تو میں شروع کرتا ہوں، کوشش کے سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے پچھلی مرتبہ میں نے چھوڑا تھا، کہ میں اپنی زندگی کے اس جوانی کے دور میں داخل ہو چکا تھا کہ جب جماعت کی ٹرمینالوجی میں ایک طفل جو ہے وہ خادم کی حیثیت سے خدام الانبیاء کی ذیلی تنظیم میں وہ آ جاتا ہے۔ اب یہ وہ دور ہے جو اگر میں اس کے کہوں کہ بڑا زندگی کے اونچ نیچ رولر کوسٹر کی طرح یہ چیز چل رہی ہے، کیونکہ اس دور میں خلیفہ ثانی کی ڈیتھ ہوتی ہے، مرزا ناصر گدی پہ بیٹھتے ہیں، مرزا ناصر کی ڈیتھ ہوتی ہے، مرزا طاہر گدی پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو مطلب میں نے 3 ادوار دیکھے ہیں، اور چوتھا جو ہے، چونکہ میں نے مرزا مسرور صاحب کی بیعت نہیں کی ہوئی، اس سے پہلے ہی میں جماعت کو چھوڑ گیا تھا، تو جو واقعات اس دور کے شروع کے ہیں اس سے میں ابتدا کروں گا۔ سلسلہ آپ یوں لے لیں کہ میں اگر 1965 پہ چلا جاؤں، جس وقت خلیفہ ثانی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اسی 65 کے ابتدا میں میری ہمشیرہ کی شادی تھی، جس پہ میرے والد کے دوست مولوی عبد الرحمان صاحب جٹ، جو قادیان کے امیر جماعت تھے اس وقت، وہ شادی میں شرکت کے لیے والد صاحب نے ان کو مدعو کیا ہوا تھا، تو وہ آئے تھے۔ جب وہ آئے ہیں تو والد صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ میں مولوی صاحب کو لے جاؤں ربوہ، اور خلیفہ ثانی سے ملاقات انہوں نے کرنی ہے تو میں ان کے ساتھ جاؤں۔ وہ دور تھا، اور میرا خیال اب بھی ہوگا کہ جو کوئی غیر ملکی آتا ہے تو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے پولیس سے اجازت اور اندراج وغیرہ کروانا پڑتا ہے، تو یہ سارے معاملات لائل پور سے ربوہ تک مطلب میں نے کیے، جو بھی سارے سلسلے۔ تو مولوی عبد الرحمان صاحب جٹ کے ساتھ میں ربوہ گیا ہوں، تو ہم میاں بشیر احمد ایم اے، جنہیں المعروف قمر الانبیاء اور مصنف سیرت البہدی جو ہیں، ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوتی ہے کہ ان سے جا کے ملتے ہیں، اور وہ مولوی صاحب کو ملتے ہیں بڑے پرتپاک انداز میں، اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں، لکھتا ہوں، اور انہوں نے بریف کیا مولوی صاحب کو کہ قصر خلافت چلتے ہیں، جو مسجد مبارک کے بیک سائڈ پہ جو رہائش خلیفہ کی، جسے قصر خلافت کہا جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت ان کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ خلیفہ ثانی بستر پر تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی گردن پہ چاقو سے ان پہ حملہ ہوا تھا، تو وہی چیز چلی آ رہی تھی، کو علاج کے لیے باہر گئے، کروا کے آئے سارا کچھ، لیکن وہ چاقو کی نوک جو تھی اس کا حصہ وہ اندر ہی تھا، تو اس کی وجہ سے کافی کچھ ان کی طبیعت جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ یہ جماعتی کاموں میں عملی طور پہ حصہ لے سکتے، تو بیڈ ریٹن تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضور
توجہ دیں، کوئی بات پوچھیں مولوی صاحب تو آپ بات کیجئے گا، بصورت دیگر آپ ان کو سلام کریے گا، اپنا نام بتائیے گا، تو پھر آگے ان کا ری ایکشن دیکھیں گے کہ حضور کیا کہتے ہیں۔ جب ہم لوگ کمرے میں داخل ہوئے ہیں تو یہ چارپائی پہ تھے مرزا بشیر الدین محمود، تو ان کے سر کی جانب جدھر انہوں نے رخ کیا ہوا تھا اس طرف ایک کرسی رکھ دی گئی ان کے لیے، مولوی عبد الرحمان صاحب کے لیے۔ وہ اس پر بیٹھے اور انہوں نے سلام کیا، حضور السلام علیکم، میں عبد الرحمان جٹ قادیان سے، تو تھوڑا سا سر ہلایا۔ اب ان کے نیچے آپ یوں کہہ لیں مرزا محمود کے بٹکس کے نیچے ایک راؤنڈ ربر ٹیوب تھی جو بیڈ سورز سے بچانے کے لیے مطلب رکھی ہوئی تھی۔ جب انسان زیادہ دیر بستر پہ رہتا ہے تو اس کو بیڈ سورز ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے وہ رکھی ہوئی۔ تو وہ کروٹ جو ہے سر کو لیتے تو بڑی تکلیف ان کو ہوتی، یہ وہ تھوڑی دیر انہوں نے مطلب چند لمحے ہی بات، تو اس طرح سے کہ مطلب اسلام دعا کے اندر اور ان سے ایک آدھ بات سننے سے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے کراہنا شروع کر دیا اور ساتھ کوشش کی کہ میں کروٹ لے لوں یا سیدھا ہو جاؤں۔ تو اس کی بنا پہ انہیں بہت زیادہ تکلیف، ان کے ذہن سے مطلب ان کی زبان سے مطلب کچھ ایسے گندے الفاظ جسے ہم گالی کہہ سکتے ہیں، تکلیف میں جب انسان ہوتا ہے تو بے اختیار وہ مغلظات بولتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انسان کو کنٹرول رہتا، اور خاص طور پہ ان کا یہ ٹائم جو تھا ان کی وفات کے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہ یہ صورتحال تھی، تو وہ انتہائی تکلیف کے اندر مطلب وہ تھے۔ تو انہوں نے تو اس کے ساتھ ہی بشیر احمد صاحب ایم اے جو تھے انہوں نے کہا جی مولوی صاحب آئیں چلیں جی، بس مطلب جلدی۔ ہاں وہ ہمیں لے کے نکلے ہیں، ہمیں دروازے تک مطلب ان کے چیخنے کی، کراہنے کی اور بولنے کی کچھ ایسے الفاظ کہنے کے ہمیں سنائی دیتے رہے، اور ہم لوگ آ گئے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ مطلب میری آپ سمجھ لیں کہ آخری بار میں نے ان کو مطلب خلیفہ ثانی کو دیکھا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مرزا ناصر صاحب کا دور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب مرزا ناصر احمد صاحب کے دور کے اندر مطلب میں پہلی دفعہ اس چیز سے واقف ہوتا ہوں کہ مطلب کچھ ایسی باتیں مطلب کانوں میں پڑتی ہیں، کچھ سننے کو ملتی جس میں یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ انتخاب خلافت پہ کوئی جھگڑا یا کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، یا ان کے خاندان میں بھائیوں میں آپس میں کوئی ایسی چیز آئی جس نے یہ سلسلہ پیدا کیا۔ لیکن مطلب ایک طرف تو توجہ نہ دی، اس چیز پہ غور نہ کیا، نہ اس کے بارے میں زیادہ کیوریس ہوئے کہ پتہ کیا جائے، کوئی تجسس وغیرہ نہیں آیا، اس لیے سنی انسنی والی بات کر دی گئی۔ اور تو وہ سلسلہ سنی انسنی بات کر دی گئی، زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس سے قبل؟ جی اس سے قبل مطلب آپ کہہ لیں کہ میں چھوٹی عمر میں تھا، تو مطلب وہ ملاقات ان سے مطلب اپنے والد صاحب کے ہمراہ مطلب میری ہوئی ہے، لیکن اپنی ہوش جسے کہہ لیں کہ مطلب میں ایز اے ٹین ایجر جو میں نے دیکھا تھا وہ 1965 کا ہے وہ ٹائم۔ اب مرزا ناصر احمد صاحب کے دور کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے خدام الانبیاء کے مطلب تحریکات تھی، کلیم القرآن کلاس، اجتماع وغیرہ، تو اس وقت انہوں نے
ایک یہ مطلب ابتدائی دور میں خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے ایک وقف عارضی کی تحریک شروع کی تھی، جس کے اندر وقف عارضی کی تحریک میں مطلب مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے حصہ لیا، جو کہ ڈپینڈنگ آن کہ ایک ہفتہ 2 ہفتہ آپ نے اپنے خرچ پہ جا کے مطلب جس طرح یہ تبلیغی جماعت والے نہیں کرتے، بالکل اسی سٹائل کے اوپر. تو مجھے سوری ایکسکیوز مجھے بھیجا گیا رحیم یار خان. یہ آج بھی یاد ہے کہ میں وہاں گیا ہوں تو ریلوے اسٹیشن سے نکلتے ہی وہ مطلب ریلوے روڈ کے اوپر ہوٹلز تھے، ان میں ایک لاہور ہوٹل احمدیوں کا بڑا مشہور تھا، اور جو وہاں کی مسجد تھی وہ اس میں ایک صوفی صاحب تھے جو کہ لاہور ہوٹل کے مالکان کے والد تھے. ان کا تعلق بھی قادیان سے تھا. ان کی بیٹی جو تھی وہ میری بڑی ہمشیرہ کی آپس میں بڑی اچھی سہیلی. تو میں ان کے ہوٹل سے مطلب میں رہا ہوں وہاں کے مربی صاحب کے رہائش پہ، اور کھانا وغیرہ میں ان کے ہوٹل پہ اپنے خرچے کے اوپر مطلب کھایا کرتا تھا. یہ ان کے بیٹوں میں سے مجھے یاد ہے کہ سب سے ان کا چھوٹا غالباً بیٹا ذکا اس کا نام تھا، وہ مجھے یاد ہے. تو اس کے ساتھ پھر یہ کہ تبلیغ کے سلسلے میں کہ جی وہاں پہ وہ نماز پڑھانی، پھر وہاں پہ جو جماعت کے لٹریچر کے بارے میں، جماعت کی تاریخ کے بارے میں، احمدیت کی تعلیم کے بارے میں، وہ عمر جو تھی وہ اس میں بڑا جوش جذبہ، اور بعض چیزیں دیکھ پڑھ کے ساتھ میں کوئی 1 2 کتابیں بھی تھیں ہماری تعلیم، ہمارے عقائد اس ٹائپ کی. تو اس سے جماعت کے لوگوں سے بات کرنی. حالانکہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری کوئی اتنی سنجیدہ باتیں تو نہیں، لیکن جو سننے والے وہ لازمی ان چیزوں کو جانتے جو بیان کرتے. لیکن یہ ایک تربیتی آپ کہہ لیں کہ سلسلہ تھا جس کو مرزا ناصر احمد نے متعارف کروایا تھا کہ نوجوانوں میں، جماعت کے لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے تاکہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے یہ چلے. یہ سلسلہ ہوا. اس کے بعد یہ جو سلسلہ آتا ہے آگے، تعلیم القرآن کلاس اور اجتماع وغیرہ بہت شروع سے چل رہے تھی یہ چیزیں. اسی آگے چلتے ہوئے ہمارے اس وقت کے جو صدر خدام الانبیاء، اب یہ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دور میں داخل ہونے لگا ہوں کہ جب یہ 70s کا مطلب الیکشن آتا ہے بھٹو دور کا، یہ جو الیکشن ہوتا ہے پیپلز پارٹی وغیرہ کا، اور اس میں مرزا ناصر جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے. اب اس کے اندر جو لوگ آپ کہہ لیں کہ فرنٹ لائن پہ تھے، ان میں مرزا طاہر، مرزا فرید، یہ 2 شخص جو تھے یہ فرنٹ کے اوپر تھے. ان کا ملنا آنا جانا یہ سارا کچھ کرنا ان لوگوں کا کام تھا. اب اس دور میں ہمارے گھر پہ جو فون تھا وہ انٹرنیشنل نمبر تھا ہمارے پاس. یہ میرے بڑے بھائی جو کہ لائی پور کے اندر فیصل آباد میں، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کھانے پینے کے کیمیکلز ہوتے ہیں، ارومیٹک کیمیکلز، ان کا کام کرتے تھے. کنفیکشنری بیکری کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، خوشبوات وغیرہ، یہ وہ ان کا کرتے ہیں. ان کی دکان کا نام تھا آرسیکو ٹریڈرز، مطلب یہ جانتے ہیں. اور ان کے بچے آج کل جرمنی میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، مطلب اسی طرح کسی ان کی بیٹیاں بھی مطلب اسی جگہ پہ.
और उनका एक पोता जो है वो गालिबन मैंने सुना है वो उसने जिंदगी वक्फ की हुई है, वो भी है। अब इस ज़िमन में मुझे जो बात याद आ रही है इसी भाई के हवाले से, जिससे आपको थोड़ा सा ये भी अंदाजा होगा कि जमात के मुखलसीन जो लोग होते हैं उनके नज़दीक बाज़ चीज़ों को समझना करना, या जमात ने जो उनकी तरबियत की होती है वो कैसे है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं अपने भाई को इस चीज़ में पेश करता हूँ जिनका जिक्र कर रहा हूँ कि उनका एक पोता जो है वो बाकायदा तौर पे वक्त जिंदगी है, जामिया से पढ़ चुका, गालबन कनाडा में ही है। सलमान उसका नाम है गालबन, मेरे भतीजे खुर्शीद का बेटा है वो। अब ये खुर्शीद जो भतीजा मेरा है, इस सलमान का बाप, ये अपने वालिद मेरे भाई अजीज साहब के साथ अपने वालिद की दुकान पे बैठता है, काम वाम करते हैं। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि अहमदी करते क्या हैं, होता क्या है। फोन जब आता किसी का और हमारे भाई ने उससे बात नहीं करनी होती, अब ध्यान में रखिएगा मेरे भाई मूसी थे, मेरे भाई मूसी थे, वो फोन उन्होंने नहीं सुनना, उस बंदे से बात नहीं करना चाहते, उसके पैसे देने हो या कोई ऐसी बात उसने को पूछनी हो जो नहीं ये बताना चाहते, कोई भी ऐसा सिलसिला, तो वो बेटा जब फोन उठाता तो वो तरीका ये करता, अच्छा कौन, खोया साहब बोल रहे हैं, अच्छा चौधरी साहब बोल रहे हैं। तो भाई को अंदाजा मतलब फौरन पता चलता है, मतलब कि भाई मतलब एक किस्म का बाप को इशारा दे रहा है कि इनका फोन है। भाई मेरे उठते, कुर्सी से उठ के दुकान की चौखट पे से बाहर आके खड़ा जो होता है, जो स्टेप होता है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और बेटा उनका कहता है जी अब्बा जी दुकान में नहीं है, अब्बा जी दुकान में नहीं, यानी दुकान के अंदर नहीं है। अब फोन बंद। मैं बड़ा हैरान इन चीजों पे होता, तो आखिर एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि ये सिलसिला क्या है, भाई तो है तो ये दुकान में, तो कहता है कि मैंने मतलब कोई झूठ तो नहीं बोला, अब्बा जी तो दुकान के अंदर नहीं है, दुकान के बाहर थे, तो मतलब हम अहमदी लोग हैं, हम झूठ तो नहीं बोल सकते। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सा अंदाजा लगा सकते हैं द मेंटेलिटी। अब ये चीज मतलब मैं किसी ऐसी बंदे की नहीं बता रहा जो मैंने कोई ऑब्जर्व किया, देखा, किया, बल्कि मैं ये अपने भाई के बता रहा हूं, और वो बाप और बेटे का के दोनों का जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपस में लेके चले हुए हैं, बेटा भी मूसी है, बाप भी मूसी है, कि ये सारे सिलसिले करते हैं। और भाई मेरे जो थे वो फैसलाबाद की मस्जिद फजल जो है गोल अमीनपुर बाजार में, जो फैसलाबाद के लोग, वो उनमें वहां पे वो एक तो अजान देना, अपने जमात की खिदमत करना, मतलब ये समझ लें, और दूसरा लाउड स्पीकर को तैयार रखना, हर चीज करना, वो इस मामले में बड़े आगे आगे होते थे। तो वो कोई ऐसे नहीं थे कि भाई उन्हें पता नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन ये बात जब चलते चलते एक दिन ऐसे ही हम तीन भाई बैठे हुए थे इकट्ठे, एक ये बड़े भाई अजीज, एक उनसे छोटे, और एक मैं, तो मैंने उनसे ये दरियाफ्त किया, मैंने कहा ये क्या है, तो मुझे बताने लगे कि देखो बात सुनो, सिलसिला ये है कि ये जो सिलसिला है ना, कि इसमें हमें हमारा मजहब इख्तियार देता है, वो हमें एक छूट देता है कि हम किसी चीज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं और उसका बदल क्या होता है, कैसे उस चीज को कर सकते हैं। इसकी मिसाल मुझे उस चीज से आ गई हमारे शेख बरादरी की, कि ये शेख साहबान जब बाहर से सामान तजारत का लेने जाते हैं, वो लेके आते हैं घर आके, बेगम साहबा कहती हैं जी ले आए, हाँ जी ले आए, अच्छा जी कितने का, मिसाल के तौर पे अगर वो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं या किसी जिन्स का इजनास का कर रहे हैं, तो जी मैं 1 रुपए गज लेके आया हूँ, या मैं इतने मतलब पैसों का शेर या किलो लेके आया हूँ।
तो वो बेगम साहबा कहती हैं अच्छा तुम ऐसे करो, इस पे थोड़े से 1 आना 2 आना मुनाफा रख के तुम मुझे बेच दो। तो वो आगे से कहते हैं चलो तुम्हें दे दिया, अब दोबारा तुम मुझे बेच दो। और वो अगले दिन जाके वो अल्लाह की कसम खा के कि मेरी अपनी खरीद इतनी है, इस अंदाज में ये जो चीज थी भाई साहब मुझे समझाने कि हम झूठ भी नहीं बोल रहे और बात सही है, क्योंकि हमने इसको ऐसे किया, हम जो कसम खा रहे हैं बिल्कुल सही खा रहे हैं कसम, गलत झूठी कसम नहीं खा रहे। ये अहमदियों की बात बता रहा हूं, मैंने किसी दूसरे मुसलमान की नहीं, ये घर की बात बता रहा हूं। और उनका ये बेटा जो है, भाई की तो डेथ हो गई, उनका बेटा जिंदा है, कनाडा के अंदर है। मतलब वो इस चीज को वेरीफाई कर सकता है, अगर उसमें इतनी हिम्मत और सदाकत हो तो कर सकता है, अगर वो गलत कहना चाहे तो भारत वो, लेकिन ये चीज हकीकत में इसी तरह। गलत से वो आप सवाल करेंगे कि मुखलिस किसे कहते हैं, इखलास को जांचने का मेयार क्या है। देखें, मुखलिस या इखलास को, इसको ये आप अगर सच्चाई का नाम दे लें तो हर इंसान के अंदर पैमाना उसके पास है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। सिंपल इज दैट, बड़ा सिंपल। इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ये चीज हर इंसान के अंदर ये जो है ये पैमाना लगा हुआ है कि उसे पता है मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। तो इस तरह की चीजें, ये मैंने जैसे पिछली मरतबा बात की कि मेरी दादी के भाई जो मिर्जा साहब के 313 साहबा में से थे, और मेरी दादी भी 313, ये दोनों बहन भाई 313, तो वो किस तरह लकड़ी और कोयले के ऊपर पानी डाल के पानी छिड़काव करके उसका वजन बढ़ा के मतलब करते। सिलसिला में ये आपसे अर्ज करूं कि ये जो एक इम्प्रेशन दिया जाता है ना कि अहमदी जो हैं दूसरे मुसलमानों से मुख्तलिफ हैं, अहमदियत में आके कोई इंसान को कोई एक और कोई उसके साथ ऐसी चीज लग जाती है। जी, ऐसा है मोहतरम, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि बाज़ लोग कहते हैं कि अहमदी जब टर्म मुखलिस इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब सबसे ज़्यादा चंदा देने वाला होता है। तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि जमात अहमदिया की इस्तिलाह में मुखलिस का क्या मतलब है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये अहमदी लोग उन्हीं मुसलमानों में से, मतलब मिर्जा साहब को मान के तो अहमदी हुए हुए हैं, अपने आप को अहमदी कहलाते हैं। ये किसी दूसरे सियारे से नहीं आए, ये लोग इसी प्लेनेट के लोग हैं, इन्हीं लोगों के दरमियान में से हैं। मसला सिंपल इतना है कि इनके अंदर भी वही बुराइयां वही अच्छाइयां जो दूसरे इंसानों के साथ हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं। लेकिन होता यह है कि बाज किसी, आप जैसे बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करते हैं तो उसके सिलेबस के अंदर फर्क होता है कि एक मजमून पढ़ाया जाता है या पढ़ाने वाला अच्छा होता है टीचर, वो चीज जो है वो स्कूल के उस रिजल्ट को बेहतर करता है। बिल्कुल उसी तरह इस जमात की एक खूबी कह लें, ये मैं आपसे अर्ज करूं, देखें जो चीजें जमात अहमदिया के अंदर जो अच्छाइयां हैं, आप कतई तौर पे ये नहीं है कि बुग़्ज़ मुआविया हुब्बे अली में कि नहीं जी हमने तो इनकी बुराइयां बयान करनी है और अच्छाइयां जो हैं वो दूसरों की, नो, जो इनकी भी अच्छाइयां हैं उनको बयान करने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां हैं। ये चीज जो है, ये जो शख्स बयान कर रहा है उसकी अपने ऊपर भी एक जिम्मेदारी और उसका कमिटमेंट होती है कि मैं जो बयान कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। तो उसे अपने आप को इस जो एक बड़ी बारीक लाइन है उसके ऊपर खड़ा करना पड़ता है अपने आप को। इस जमात ने अपने लोगों की जो तरबियत की है उसके अंदर सबसे ज्यादा, हालांकि मैंने जो लिखा भी है वो है अंधी अतात, कि आपने ये नहीं सोचना कि क्या कहा जा रहा है, बस आपने ये देखना है कि हमें हमारे खलीफा ने ये बात कह रही है, बस हमने आंखें बंद करनी है, सर नीचे करना है और उसकी बात मान। जी बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर चीज के अंदर जैसे यही दीनदार, दयानतदार, नेक, अब नेक जो है वो नमाजें पढ़ने वाले भी नेक हैं, सच बोलने वाले भी नेक हैं, किसी को दुख ना देने वाले भी नेक हैं, हत्ता कि हम उनको मुत्तकी के दर्जे पे भी ले जाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल जमात के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि इखलास का और मुखलस का ये है कि जी बिल्कुल, फिर वो जमात के काम करने वालों को अगर तो वो गरीब है तो ये अंदाजा कर लें कि अगर तो कोई शख्स फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है तो उससे गधों की तरह काम ले लिया जाए तो वो बड़ा मुखलिस होगा, उससे दिन रात काम ले लिया जाए बड़ा मुखलिस होगा। लेकिन उसी के बराबर पे दूसरा एक शख्स जो पैसे वाला है, वो तो ज्यादा पैसे दे के वो बहुत बड़ा मुखलिस है, उसका इखलास जमात के साथ ये है कि वो जी खलीफा साहब के लिए, ओहदेदार के लिए, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ करने को तैयार रहता है। सो ये चीजें जो है ये बनी हुई हैं, इसी तरह से चल रही। मैं अर्ज कर रहा था कि जमात ने जो अपनी तरबियत की हुई है लोगों की, वो अतात के मामले में उनको ये चीज से बता दी, सिखा दी, उनकी घुट्टी में डाल दी गई है कि आपने सोचना नहीं है, आपने गौर नहीं करना, आपने ये देखना है। आपने अक्सर देखा होगा और अभी तक ये चीज चल रही है कि मरकज से हुक्म आया है, मरकज ने ये कहा है, ये मरकज की बात, मरकज कह रहा है, मरकज हमसे डिमांड कर रहा है, ये बात होती है। तो हजूर का हुक्म है, कायद साहब ने ये कहा है, फलां ओहदेदार किसी ने भी, तो वो चूंकि नुमाइंदे हैं खलीफा के, तो उस चीज को लेके कि आपने सोचना नहीं है, आपने सवाल नहीं करना। इस बात को रखते हुए, इस चीज को एक्सपोलाइट करते हुए कि ये खलीफा साहब ने, मरकज ने ये कहा है, लिहाजा अब तुम सोचो नहीं, बस जो तुमसे मांगा जा रहा है, जो तुम्हें कहा जा रहा है वो कर दो। ये जो चीज है एक लिहाज से बड़ी अच्छी है, लेकिन दूसरे लिहाज से जिसका कि आपसे आप खुद अंदाजा करें, सोचें इस बात के ऊपर कि क्या कुरान ये तकाजा करता है। मैंने जो एक कल या परसों एक पोस्ट लगाई थी कि कुरान तो डिमांड करता है कि मेरी आयात पे, अल्लाह की आयात पे भी अंधो बहरों की तरह ना गिर पड़ो, बल्कि गौर फिक्र किया करो, तदब्बर करो, गौर करो। मीनिंग इज दैट वन। अच्छा, इन्होंने भी एक बड़ा कैच 22 रखा हुआ है। ये मैं आपसे अर्ज कर दूं, जब कोई इस चीज पे बात करे वो समझे कोई एतराज आया या सवाल है, तो वो कहते हैं जी खलीफा साहब ने भी अपने बैत के इस मजमून के अंदर ये रखा हुआ है कि खलीफा वक्त या अहद करते हुए भी, जो अहद हैं खुदामुल अम्बिया का, इंसार का, लजना का, इतफाल के, खलीफा वक्त जो भी मारूफ फैसला फरमाएंगे कि जी हमने तो बिल्कुल नहीं कहा कि आंखें बंद करके आए, हमने तो ये कहा है कि मारूफ फैसला। अब मारूफ का फैसला कौन करेगा, मारूफ को डिफाइन कौन करेगा? क्या आज तक इसकी कोई मिसाल मिलती है? या चले से इट लाइक दिस वे कि मिर्जा नासिर अहमद का जो 74 के अंदर 74 के उस ट्रेन के पे हमला जो है और ये सारा सिलसिला जो था, ये मारूफ फैसला था। मतलब, और अगर कोई ये कहे कि जी वो तो खलीफा साहब ने कहा ही नहीं था, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये फैसले, ये कहना जो होता है किस तरह कहा जाता है। ये इनका अंदाज जो है बिटवीन द लाइन, ये जब अपने खास तौर पे शोबा अमूमी के लोगों की ट्रेनिंग करते हैं ना, उनको जब ट्रेंड करते हैं, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। इससे हालांकि आम अहमदी दरमियान में आ जाते हैं कि जी हमारी जमात ऐसी नहीं, जी ऐसे नहीं करते, जी वैसे नहीं होता, ये नहीं वो नहीं। लेकिन यकीन कीजिए हर अहमदी के लिए ये बात नहीं है। वो सर्टन लोग, मखसूस लोग होते हैं जो बहुत सी चीजों को जानते हैं और मेजॉरिटी को बिल्कुल पता नहीं होता। वहां पे तो सिलसिला ये होता है, ये कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस आप खुद पढ़ो। अगर एक काम इन्होंने करवाना है
वो आपको मुखातब हो के नहीं, किसी और तरफ देख रहे हैं, बातें कुछ और हो रही हैं, कि बंदा कोई और खड़ा है, लेकिन आपको एक मैसेज, एक चीज की बात हो रही है, आपने उसमें से पिक करना है। अच्छा, फिर फैसले के लिए कि मिसाल के तौर पे वो बंदे ने समझ लिया, वो चला गया, वो काम कर रहा है, दरमियान में कोई उसको मुश्किल पेश आ गई या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उसको ये सख्ती से मना है कि तुमने वहां से हमें कॉल नहीं करना या हमारे पास नहीं आना। इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुकामी हालात के तहत फैसला कर, कि आपने खुद करना है और हर चीज को अपने कंधों पे लेना है। इसलिए आप देखेंगे कि अहमदी जो हैं वो हर बात को अपने ऊपर लेते हैं, कभी ये नहीं कहते कि हमें ये मरकज की तरफ से हदायत मिली थी, या हमें हमारे फलां कायद साहब ने कहा था, या जईम ने, या जो भी हैं सदरान हैं उन्होंने कुछ कहा था। वो अपने सर पे लेते हैं ये चीज को। ये रवैया किनका होता है? हम गौर कीजिए, ये कौन लोग होते हैं? अब अब क्या जमात अहमदिया शुरू से, ये इनका शुरू से तरीकाकार है, क्या ये शुरू से कोई ऐसी तहरीक है, कोई ऐसी मूवमेंट है जिसका मजहब से ताल्लुक नहीं, बल्कि दुनियावी गलबे के साथ कोई ऐसा खिता ढूंढने के लिए, कोई इक्तदार की खातिर ये सारे काम हो रहे हैं, ये चीजें किए जा रहे हैं? ये, जैसा मैंने अर्ज किया कि रब्वा के रेलवे स्टेशन का वाकया ले लें, मौलवी अला यार अरशद का केस ले लें, यकीन करें उस पूरे केस के अंदर, मतलब जो मुल्जमान थे, नाजर अमूरामा जहूर बाजवा, सदर अमूमी हकीम खुर्शीद, ख्वाजा मजीद एक मिठाई वाले, एक भांजा था हकीम खुर्शीद का वसीम, और एक लड़का बाका मुबारक उसका नाम टांगे वाला। ये जो मुल्जमान और मुजरमान थे, जो मतलब इस केस में अलैया अरशद केस में मुलविस थे, मैंने इस केस में इन मुल्जमान की, इन मुजरमान की बाकायदा तौर पे जमानतों के साथ फैसलाबाद जेल से इनकी रिहाई करके इनको रबवा खुद ड्राइव करके मैं लेके गया हूँ। वीडियो पड़ी हुई है जमात के पास इसकी बाकायदा तौर पे, कि इनका करवा के, उस वक्त जमात से एक बंदा, गालबन मिर्जा फरीद का वो कोई टाउट था या उसका कोई करिंदा था, फजल डोगर के नाम से, वो बड़े आगे आगे चलने फिरने की कोशिश करता था। वो ये 6 माह तक इन लोगों को मेरे घर से खाना जाता रहा है, ये फैसलाबाद की जमात जानती है। हत्ता के कनाडा के अंदर जो झंग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे, मजीद कुरैशी साहब, बड़ी अच्छी तरह से वो मुझे जानते हैं। हाँ, इनको मिलने के लिए, इन लोगों को मिलने के लिए, इन कैदियों को मिलने के लिए जंग जाया करते थे। फिर जंग से इनकी ट्रांसफर करवाई हमने फैसलाबाद के अंदर। मजीद कुरैशी साहब बड़ी अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं कि यार फैसलाबाद की जेल जो थी, उसके तकरीबन अमले को हमने खरीदा हुआ था। अब एक तरफ तो ये है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला, अगर हम इतने ही दीनी जमात हैं, इतना ही हमारा सिलसिला है, तो ये रिश्वत देना और लेना, तो हमने तो पूरी की पूरी जेल जो थी वो जैसे कहना खरीदी हुई, बिल्कुल वो किया हुआ था। फैसलाबाद के अमीर जमात शेख मोहम्मद अहमद मजहर साहब, जो एडवोकेट, यकीन करें कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाके उनकी मुलाकात उनसे करवाई हुई है हमने। और वो कैसे होती है? या तो आपकी अप्रोच हो या आप उनको पैसा खिलाएं, और हमने बाकायदा तौर पे ये पैसा दिया हुआ। सो ये जो सिलसिला है, मेरा ख्याल है कि अगर इसको यहाँ तक रख लें, अ, और ये मजीद कुरैशी साहब इसके गवाह हैं, फिर फैसलाबाद के वो लोग, वो भी इधर यहाँ कनाडा में है, एक शेख महमूद एमनाबादी, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं वो, मुझे भी जानते हैं, इन तमाम हालात वाकया
ये मैं नाम इसलिए दे रहा हूं कि आप इन लोगों से पूछ सकते हैं, और आई विश कि ये लोग हिम्मत करके सच से काम लें। लेकिन यकीन कीजिए, मुझे पक्का पता है कि इनकी उम्रें, मुझसे बड़े ये लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपनी आखिरत बर्बाद कर लेनी है सच नहीं बोलना। लेकिन बोल दे तो मेरा सल्यूट है इन लोगों को, या कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ। जी मोहतरम शेख साहब, ये अल्लाह यार केस के बारे में लोग जानने के काफ़ी ख्वाह हैं। पिछले किसी प्रोग्राम में भी बात की गई थी, लेकिन अफाफ साहिबा को इसकी बहुत डिटेल नहीं पता थी। तो आप प्लीज़ अल्लाह यार अरशद केस को ज़रा तफसील से पहले बता भी दें, क्योंकि इस तरह कुछ नहीं पता चलेगा कि केस था क्या। मैं इसलिए ये सारे नाम दे रहा हूँ जो मैंने कहा है, ताकि आप इसको देख सके, परख सके। मौलाना अला यार अरशद केस की डिटेल और 74 के अंदर के क्या चीजें हुई, ये मैं आपसे, मेरा ख्याल है अपने अगले में हिस्से में बयान करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये अला यार अरशद केस ये था जी, कि ये इस मौलवी साहब से रब्बा पूरा तंग आया हुआ था कि ये जी रिकॉर्डिंग लगा देता है ये बंदा, तो गाने लगा देता है, मिर्जा साहब को गालियां देते हैं, ये होता है वो होता है। हमें जो फैसलाबाद के अंदर मतलब आया कि इसके साथ डील करना है, जो दो लड़के मैंने बताए हैं जो इनके साथ, हकीम खुर्शीद का एक भांजा और जहूर बाजवा साहब, इन लोगों के साथ जेल में, वो मुबारक टांगे वाला और वसीम, ये वसीम जो था जुडो कराटे का ब्लैक बेल्ट था ये लड़का। तो इन लोगों को मतलब इन्होंने उसे पकड़ा है, लिया है, और लेके इस शख्स की बिल्कुल ठीक ठाक उसकी पिटाई की है, मारा है उसको। और उस पे के ये चीज डाली गई कि ये एक अहमदी औरत के घर में दाखिल हो रहा था, वहां से हमने इसको पकड़ा, ये किया वो किया, पूरी प्लानिंग के तहत। उसके बाद जब इसको चन्योट अस्पताल में दाखिल करवाया गया, तो हमें बुलाया गया फैसलाबाद से कि भाई ये ड्यूटी देनी है। क्या कि मौली अला यार अरशद के अस्पताल के अंदर अब हम मुसलमान लड़कों का भेष डाल के ये वो करके, तो उनकी खिदमत के लिए ये वो पूरी निगरानी हर लिहाज से, हर चीज से कवर करना है, वो चीज किया। इसके साथ ही ये जो लोग थे, इनको, जो मुल्जिमान, इनकी देखभाल ये वो, उस वक्त मियाँ सज्जाद जो एक लड़का था, वो हमारा कायद जिला था, और मेरा एक रिश्तेदार शेख सलीम, नहीं, शेख सलीम कायद जिला था और मियाँ सज्जाद कायद मजलिस था, कायद शहर था ये। और इसके साथ जो फैसलाबाद के अंदर एक करीम मेडिकल हॉल है, जो हमारा नहीं है लेकिन डॉक्टर फजल करीम मतलब उन्हें कहते हैं, और वो भी बेचारे कंपाउंडर थे, लेकिन चूंकि हर बंदा डॉक्टर कहलाता है, उनका बेटा राफे, वो मतलब वो भी कायद था। ये लोग पूरे अच्छी तरह से कि किसने क्या काम करना है क्या नहीं है। अब चूंकि मैं शोबा अमूमी के साथ तहत, सॉरी मेरा ध्यान नहीं रहा था, मेरी ऑडियो जरा ज्यादा 3 मिनट तक चल गई, इसलिए मैंने इसमें लिए। तो कहने का मकसद यह है कि हम, ये जो लोग थे, आ, हमारे कायदीन साहब के क्या चीजें, कौन सी ड्यूटी किसने देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, सबसे ज्यादा हमारे लिए ये सिलसिला था कि हॉस्पिटल वगैरह में वो सारी रिपोर्ट्स आती थी, वो चीजें चली जाती। रब्वा के अंदर उस वक्त मौत में थे, वो हमारे फैसलाबाद में थे अमीन साहब जंग के, उनका भाई था शमीम परवेज, या मौत में खुदा मुलैम दिया शमीम परवेज। अच्छा, शमीम परवेज मेरा ख्याल आजकल कोई नादर वादर होंगे,
वो भी बड़ी अच्छी तरह से इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि मेरा रोल क्या था, मैंने कौन कौन से मतलब काम किए हुए हैं, किस चीज़ों में मुलव्वस रहा हूँ, मुझसे जमात ने क्या काम लिया है। बात फिर वही है, दयानतदारी से काम ले तो दे कैन टेल यू एवरीथिंग। हत्ता के मतलब महमूद बंगाली जो हमारे सदर खुदामुल अहमदिया थे, उनके लिए मछली फैसलाबाद से रवा बीबी जमील के घर पे मतलब पहुंचानी, ये भी एक हमारी ड्यूटी में शामिल होता था। अब यहाँ तक अंदाजा कर लें। और महमूद बंगाली हर वक्त बीबी जमील के घर में बैठा हुआ है और हम वहां उसको पहुंचा रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि उजाला साहबा अगर यहाँ तक रख लें, बाकी चीज़ें बाद में रख लें तो ठीक है, लेकिन दरमियान में कोई सवाल है या अगर कोई चीज़ ऐसी आप चाहते हैं क्लैरिफाई करनी तो वो मुझसे मेरा ख्याल पूछ लीजिए, बाकी आइंदा के लिए रख लें अगर आप मुनासिब समझती हैं। मोहतरम, चूँकि कॉन्टीन्यूटी बनी हुई है और आप जो कुछ बयान कर रहे हैं तो उसको बीच में ब्रेक करना मुनासिब नहीं है, इसलिए सवाल हम एंड में ले लेंगे। एक आध सवाल है, वो भी ऐसा है कि आपका फ़िरका क्या है, आपका मसलक क्या है, तो ये ऐसी बातें हैं जो बाद में भी की जा सकती हैं ग्रुप ओपन करने के बाद। मोहतरमा उजाला साहबा, एक चीज़ मद्देनज़र रखिएगा और हमारे सुनने वाले भी, कि देखें हर किसी वाक़े को जब दो लोग या एक से ज़ायद लोग बयान करते हैं तो हर बंदा अपने एंगल से या जितना वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो, और जहां पे वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वाकयात की या किसी जगह के उसका जो एरिया होता है वो कोई 1 इंच या 2 इंच की बात नहीं होती। एक शख्स अगर कहीं एक वाकया हो रहा है एक जगह है तो वो उसी हिस्से को कवर करता है, दूसरा शख्स जो होगा वो दूसरी तरफ करेगा। तो इसका मतलब मैं किसी बंदे अगर कोई और मतलब अला या अरशद या 74 वाला वाकया बयान करे तो वो उससे मैं अगर वाकिफ नहीं या मैं उस जगह नहीं था तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो बयान कर रहा है बंदा वो गलत है, ऐसा हुआ नहीं है, नहीं। हर बंदा जो अपना उसका एक रोल है, एंगल है, जो उसका अपना विजन है, जो उसका अपना एक्सपोजर है वो बताएगा। हमें अक्सर ये चीज आ जाती है, जमात के बंदों का या आम अहमदी का ये रवैया है कि वो कहता है दूसरे को नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम झूठ कह रहे हो, हालांकि वो शख्स अपना हिस्सा जो है, अपनी साइड जो है वो बयान कर रहा हो। तो इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो हम बहुत सी चीजों की तह तक पहुंच सकते हैं और बड़े हकायक को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करके सही तस्वीर बना सकते हैं। जी शुक्रिया। जी मोहतरम, मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि ये इसका मतलब है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से एक काम को करने की साजिश की जाती है, यानी कि प्रॉपर एक प्लानिंग की जाती है और उसके ऊपर मुखलिसीन का इस्तेमाल किया जाता है, पैसा इस्तेमाल किया जाता है, ताकत इस्तेमाल की जाती है और अपने मुखालिफिन का यानी मुंह बंद करने, सज़ा देने, हत्ता के बाज़ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए भी ये महकमा जो है काम करता है। इस महकमे की अमूमी की हमें ज़रा डिटेल बताएं, क्योंकि वो हमें नहीं पता। जी बहुत बेहतर उजाला साहबा, बिल्कुल ठीक है। तो खैर आप फिर उस चीज को ले लें कि असल में मौली अला यार अरशद को मारपीट वो उसकी हो गई, ये वो सारा सिलसिला हो गया, जो कुछ भी था वो चला गया। असल जो सिलसिला है वो इन बंदों जो थे, मुल्जमान जो थे, इन जेल में जो रहे, जैसा मैंने अर्ज किया कि वो शुरू के इब्तदाई दौर वो झंग जेल में थे। मजीद कुरैशी साहब जो आजकल कनाडा होते हैं वो बता सकते हैं। ये जियाउल हक का दौर है और मार्शल्ला के तहत इनका केस था वहां पे लगा हुआ। तो ज्यादातर टाइम इन्होंने फैसलाबाद जेल में गुजारा है। तो फैसलाबाद जेल के अंदर तमाम मुलाकातें करवानी, मिर्जा ताहिर अहमद के खत इनके नाम जो आते थे वो इन्हें पहुंचाने, इनके मतलब इनके घर वालों की, दीगर जमात की मुलाकातें करवाना, सारा कुछ करवाना, ये सारा
अब बेचारा नसीम मेहदी जो हैं हमारे यहाँ के कनाडा के नेशनल अमीर, ये ये जो है वो अब इस हालत में नहीं है। अदरवाइज आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये भी बिल्कुल बाकायदा तौर पे। अच्छा हाँ, सॉरी, मैं एक नाम भूल गया दरमियान में से, अपना अजीज भांबड़ी साहब, जो मेन बंदे थे अजीज भांबड़ी, जिनसे मुलाकात के लिए नसीम मेहदी भी मतलब वहां जेल में आया करते थे, ये सब लोग। तो इनसे आप तस्दीक कर सकते हैं कि क्या होता, किस तरह से ये जमात अपने आप को जब ये कहती है ना जी हमारे साथ ज्यादती होती है, यकीन करें कि आज भी इस जमात के हाथ पांव इतने मजबूत हैं और इतने दूर तक हैं कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रोपोगंडा है इनका कि ये चीज है। उस वक्त मतलब ये सारा कुछ 74 का वाकया हो चुका हुआ है, अहमदी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो चुके हुए हैं, जियाउल हक बुरी तरह दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद मतलब जेल के अंदर इनको हर चीज मुहैया होती थी। जी। मोहतरम, एक मेंबर ने पूछा है कि भांबड़ी साहब से कुछ पूछने के लिए तो शायद अगले जहान जाना पड़ेगा, वहीं जाके उनसे कुछ इंक्वायरी वगैरह की जा सकती। वो तो देखें जी, सिर्फ बामड़ी साहब के लिए नहीं, हकीम खुर्शीद साहब के लिए भी आप अगले जान जाना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा इल्म है, जहूर बाजवा साहब के लिए भी। और अल्लाह बेहतर जानता है ख्वाजा मजीद अभी जिंदा है या नहीं है। मतलब ये लोग ऑब्वियसली, आज से मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त अगर ये लोग 50 50 60 साल के थे, तो अगर कोई इनमें से, हाँ नसीम मेहदी मैंने जैसे कहा कि अभी है, लेकिन मैंने वो नाम ये अजीज भावड़ी का इसलिए लिया कि ये मेन बंदे जो थे ना जमात के, मतलब की जिसे कहना चाहिए कि असल लोग, जहूर बाजवा, नाजर अबू रामा, अजीज भांबड़ी, हकीम खुर्शीद, ये मतलब कोई मामूली लोग नहीं थे। इनके लिए, इन्हीं के लिए तो पूरी जेल खरीदी थी हमने कि इनको पूरी तरह से हर फैसिलिटी दी जाए कि ये चीज इन्हें मिले, कोई ऐसी चीज ना रह जाए कि ये मतलब किसी तंगी में। हत्ता कि आप अंदाजा करें कि जो आम कैदी होते हैं वो इनकी टांगें दबाने, सर दबाने के लिए यहाँ तक हम लोगों ने इनको मुहैया किया। जी मोहतरम, एक मेंबर का सवाल है कि इंसान में कौन सी ऐसी गैर मामूली खसूसियात होती हैं जिसके लिए वो शोबा अमूमी के रुकन के तौर पे चुना जाता है। तो उजाला साहब, अगर आप यहाँ तक इत्तेफाक करती हैं मेरे साथ के 1 घंटे का, तो बाकी फिर कर लें, या जो आप हुक्म करें। ठीक है, मैं इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ वो चीज़ों को, कि फिर आगे सिलसिला वो 74 वाला आ जाएगा कि जो मार कुटाई की गई, जिस तरह से ये सारा हुआ, और किस तरह से सरगोदा से मतलब रैकी करते हुए कौन लोग थे। मैं वो भी नाम बता दूंगा कि जो गाड़ी के साथ जिन्होंने बकायदा रवा में दाखिल होते इशारा दिया था कि ये डिब्बा है, यहाँ पे है फलां, ये सारा कुछ वो भी आ जाएगा कि किसने मारा, क्या हुआ, क्या। आप उसे गैर मामूली कह लें या ये चीज कह लें कि कोई इंसान जो, पहली चीज बुनियादी जमात के ओहदेदारों में ये जहन में रख लें कि जो कायदीन उमरा वगैरह होते हैं, या इस तरह के, चूंकि अमूमी की बात आपने की, कि जो फाइनेंशियली मजबूत हों, जिनके सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा हों, वो हुकूमती अदारों के अंदर जाने पहचाने लोग हों, ये जमात इन ऐसे बंदों को हमेशा अहम ओहदे दिया करती है। क्योंकि ये नहीं है कि मतलब उसको अदा दिया वो बेचारा पैसे खर्चने, क्योंकि जमात का बजट नहीं आपको ऐसा मिलता कि वो कहे जी आप जो जी में आए खर्च कर लो। ये सारा कुछ अपने पास से, और लोग, आपको पता है जैसे कि हर बंदा, वही बात मुखलिस वाली आ जाएगी कि वो अपने आप को आगे दिखाने के लिए कि हम जमात से कितने मुखलिस हैं, हम खलीफा से कितने, हम अपनी जान माल सारा कुछ देने को तैयार हैं, वो चीजें। दूसरा कि हर इंसान जब बात करते हुए ये लोग देखते करते हैं तो उसमें देख लेते हैं किसी के अंदर विजडम कितनी है, कोई किसी चीज की मतलब ये शख्स कितना इल्म रखता है, क्या जानता है, किस फील्ड में ये शख्स जो है ज्यादा तेज है। सो ये एक कॉमन सेंस की बात है, ये चीजें आती हैं। जी मोहतरम शेख साहब, अब मैंने आपकी सारी ऑडियो सुन ली हैं
اور میں اب آپ کو اس کو مزید سوال ایسا نہیں کروں گی کہ آپ کو جواب دینے کی زحمت ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ایسا ہی ہمارا آپ سے طے ہوا ہے۔ تو لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو باتیں سننے کے بعد کہ پھر وہ جو روحانی گرومنگ، وہ اصلاح، روحانی اصلاح، وہ خدا سے ملوانے والی جو معاملات تھے جن کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو خدا سے ملوائیں، ان کی روحانی اصلاح ہو وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ پھر کہاں رہ جاتا ہے؟ یہ تو سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ ساری کام جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیے جائیں، اور عام لوگوں کی طرح جس طرح وڈیرے لوگ اور اس طرح کے مافیاز اپنے معاملات طے کرتے ہیں طاقت سے، زور سے، پیسے سے، دھونس سے، دھاندلی سے، وغیرہ وغیرہ سے، اگر اسی طرح سے کام ہوتے ہیں تو پھر وہ روحانی گرومنگ اور وغیرہ وغیرہ وہ کہاں چلی کے جاتی ہے؟ تو میں اس کا جواب نہیں طلب کر رہی، میں محض اپنی ایک رائے پیش کر رہی ہوں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ حکیم خورشید، جو خورشید یونانی دواخانہ والے تھے صدر عمومی، ان کے دور میں جو روا کا تھانہ خریدا ہوا تھا اس کا تو مجھے پورا پتا ہے، کیونکہ حکیم خورشید صاحب جو تھے وہ میرے رشتہ داروں میں سے، میری اور ان کی شادی جس خاندان میں ہوئی ہم دونوں کا سسرال ایک ہی، تو ان کے ساتھ مطلب زیادہ تر ٹھہرنا، بیٹھنا، اٹھنا، حتیٰ کہ یہاں پہ یہ بھی ایک چیز کہ جب مرزا ناصر نے شادی کی ہے تو ان کے لیے جو کشتے تیار کیے تھے حکیم خورشید صاحب نے، اس کے انگریڈینٹس کے لیے انہوں نے مجھے بھیجا تھا اپنے ڈرائیور فرزند کے ساتھ لائل پور سے فیصل آباد سے لینے کے لیے وہ چیزیں مطلب میں لایا ہوں۔ یہاں تک مجھے کہ حکیم صاحب پیسے کے معاملے میں، جیسے انہوں نے پوچھا نا کہ عمومی کے شعبے میں، اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو حکیم خورشید صاحب اس معاملے میں تھے، تو وہ بے دریغ ان لوگوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے، پولیس والوں کو۔ اور آپ نے اتنا زیادہ ٹائم دیا، وہ ایک صاحب کا سوال تھا، وہ آپ گروپ کھلنے پہ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، تاکہ اگر انہوں نے مزید کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر لیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، اور اب آپ کے مطلب مذہبی خیالات وغیرہ کیا ہیں۔ وہ میں سوال بہرحال یہاں لگا دیتی ہوں، شاید میں نے ایگزیکٹ الفاظ نہ بولے ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت سی نادر و نایاب معلومات آپ نے فراہم کی۔ سچی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ عمومی کیا کام کرتا ہے شعبہ، اس کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہیں گے۔ محترمہ اجالا صاحبہ، آپ اور آپ کی ٹیم کا اور تمام سننے والوں کا بہت شکریہ، اور جس تسلی سے، پیشنس سے آپ نے سنا، آپ کا ممنون ہوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میں کس مذہب سے یا فرقہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو اگر تو کسی نے میری بیعت کرنی ہے تو بہرحال ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ہے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے، اس لیے وہ چیز فرقوں کا میں قائل نہیں ہوں، تو فرقہ بازی کا میں قائل نہیں ہوں، تو اس لیے میں اس چیز ضمن میں تو معذرت ہی چاہوں گا۔ جی، اگر میرا خیال ہے کہ کوئی ریکارڈنگ اگر، اچھا، سوال کرنے والے اگر اپنا نام پہلے بتا دیں کہ جی میں بول رہا ہوں، اتنی جرت آپ کر لیں، مطلب اس سے کوئی نہیں، لیکن آسانی ہو جائے گی مجھے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، مطلب اتنی جرت ہمت پیدا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک ایسے ماحول سے، ایک ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے کہ آپ اگلے کو انٹروڈیوس کروا سکیں۔ دیکھیں، جیسے میں بات کر رہا ہوں، اجالا مغل صاحبہ اور دیگر لوگ بات کر رہے ہیں، سو جو بھی کوئی سوال کرنا چاہے اگر اپنے نام بتا کے کریں تو بہت میں ان کا ممنون ہوں۔ تھینک یو۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سعید قریشی اور ہم آپس میں، مطلب میں جماعت چھوڑنے سے پہلے ہمارے آپس میں ملنا جلنا بالکل ایک دوسرے کے آیا جایا کرتے تھے، تو میں نے سنا تھا کہ مجید قریشی صاحب بھی کینیڈا آئے ہیں، تو میں اسی حوالے سے ذہن میں رکھتے ہوئے، یا وہ میرا خیال کسی جلسے پہ آئے ہوں گے،
तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर द करेक्शन, आई रियली थैंकफुल टू यू, थैंक यू सर। आपने कहा कि मैंने मुजरमीन, मेरा ख्याल है कि मैंने मुल्ज़मान और मुजरमान, मतलब ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं मैंने। मुल्जिम मतलब उस वक़्त तक है जब तक कि उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता, और मैंने, मतलब आप कह लें, जो कि मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल, और मैं आपके साथ इत्तेफाक करूंगा कि मतलब वो जो अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है, मतलब मैं उस अरसे में उनको मुजरिम मतलब कहते हुए, और अगर मतलब वो ऐसी चीज नहीं तो मुझे अगर नहीं कहना चाहिए तो मैं वापस लेता हूँ इस चीज को। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैं अगर ये लफ्ज इस्तेमाल कर गया हूं तो मैं उनके बारे में कह रहा हूं कि वो मुजरिम है, नहीं। मतलब मैंने अगर गलत इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली अगर जुर्म साबित नहीं होता, आपने कहा कि वो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन सवाल ये होता है कि ऑर्डर देने वाले, हुक्म देने वाले, काम करवाने वाले भी उसी चीज में आते हैं, तो इस लिहाज से उन लोगों को अरेस्ट किया गया था। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन वो भारत मुल्जिमान थे। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने बात की। ये जो एक सवाल गालिबन अफ़ाफ अजहर और एहसान परवेज, सैयद आमिर अहमदी वगैरह कि क्या अच्छे इखलाक का लिंक अच्छी इकोनॉमिक्स कंडीशंस से है, अगर ये कंफर्म कर दें कि आप लोग सवाल मुझसे कर रहे हैं तो फिर मैं इसको रिस्पॉन्स करूं। प्लीज इसको जरा रिस्पॉन्स करूं। शेख साहब, आपको ये वाक़े का मालूम ही नहीं ये शुरू कैसे हुआ, किसने क्या किया, कितने बंदे इन्वॉल्व थे और किसके घर में वो जा रहा था और क्या कर रहा था। तो ये आप, अगर आपको नहीं पता था, आई डोंट नो, आपके पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं आई। मैं नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि उस चीज़ में मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था। चलो मैं आगे आपके मैसेज सुन लूँ, बाकी आपको फिर मैं बताता हूँ असल वाक़या ना। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, देख लो तुसी बेहतर समझते हो। मेरा नहीं ख्याल कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਨ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ऐसी कि कुछ है भुलदी नहीं अक्सर ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां। मुझे सब है याद ज़रा ज़रा। देख लो जिस तरह तुम मुनासिब समझते हो। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपके तासुरात, आपके कमेंट्स और आपके बातें मैंने सुनी हैं, और मैं यकीनन आपके जज्बात को भी समझता हूँ, और उस चीज़ से मुझे कोई गिला शिकवा या शिकायत नहीं है। हर इंसान का रद्द अमल जो होता है, रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। मैंने ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अर्ज कर दी, जिसको कि उजाला साहिबा ने भी मतलब इस चीज़ को एंडोर्स किया था, कि हर इंसान के जो अपने ज़राए होते हैं, या जिस मुकाम से वो ले रहा होता है, या जिस सोर्स से वो ले रहा होता है बात को, या जैसे उस तक पहुंच रही होती है, वो उसका एक्सपोजर उसी हवाले से और उसकी आगे बयान करना भी उसी तरह होता है। मैं आपके किसी भी बात को चैलेंज न कर रहा हूं, न करने की पोजीशन में हूं। ये जो वाकयात हम आज बात कर रहे हैं, आज से 40-45 साल पहले की बातें हम लोग कर रहे हैं, और उसमें ये है कि मैंने बाकायदा तौर पे आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास ये बात पहुंची, जिस तरह हमारे से आया कि हमारे जिम्मे ड्यूटी लगी कि हमने क्या करना है क्या नहीं। मैं, आप वो लोग हिम्मत करें, मतलब पूरी तरह से, या तो फिर मतलब ये आप कहना कि जी मैं इन्वॉल्व हूं, मैं जानता हूं, मेरे पास हकायक हैं, तो आप, बड़ी अच्छी बात है, मतलब आप फॉर द रिकॉर्ड सेक आप इस चीज को ले आइए। या तो आप गिल्टी फील कर रहे हैं कि उसमें आपकी कुछ ऐसा हरकत रही हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जमात के लिए खतरनाक होगी या आपके लिए होंगी, और अगर ऐसी नहीं है और सच करते हैं तो आप खुद आके सामने आके बताएं इस चीज को
कहें कि ये चीज़ है, और मेरे जैसे लोग जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को भी करेक्ट कर लें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं जो कुछ दे रहा हूँ वो आंखों देखा, जो आंखों देखी बात है वो आंखों देखी है, जो कानों से सुनी है वो कानों से सुनी है। सो इसलिए यहाँ पे मतलब बड़े अच्छे कमेंट भी किए गए। आई रियली अप्रिशिएट कि भाई अगर इस चीज़ का मुजाहरा किया जाए कि हम लोग इखलाक के दायरे में शाइस्तगी से काम लेते हुए अगर हमको बात करें, तो मतलब ये चीज़ जो है हमारे बहुत से मसाइल का हल है, हम बहुत से फासले तय कर सकते हैं इस चीज़ से। बहरहाल मतलब यहाँ पे आपके कमेंट्स सुन के मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मुझे अच्छा महसूस हुआ, और मैंने आप लोगों की बातों से भी मतलब कुछ सीखा है इस चीज़ के बारे में, और इसी में आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे।